Okay, so we are starting with the P4 questions of electromagnetic induction. Now, remember, the theory of induction is very easy. I mean, there is not a lot that we can teach you in theory except for the concept of Faraday's law, Lenz's law, how the change in magnetic flux induces an EMF. But what I always say is that the best way to learn electromagnetic induction is to do a lot of questions. So I'm doing, a good number of questions with you guys just to make you understand all the concepts of electromagnetic induction. Okay. So rather than, you go through the notes, you see the video of those notes, but the most important part is that you have to do the questions. Okay, so let's start with, there are some recent questions and there are some questions from the older years, like going back to 2006. So I've covered all the spectrum, all the type of questions that they've given. Okay, so a Hall probe containing a thin slice of semiconductor material is placed in a uniform magnetic field of flux density B. The largest faces of the slice are perpendicular to the magnetic field as shown. Okay, so you can see a Hall probe which is placed in a magnetic field. You can see a current flowing, okay, 5.4 amperes का current flow कर रहा है. अच्छा, just to remind you that you don't actually get a whole question on induction. So there'll be some parts which will be related to Hall probe or electromagnetism. Okay, so I expect all of you to already know the basic principles of Hall probe and electromagnetism. Chalo, let's see now what happens. So the first part of the question is the thickness X of the slice is 1.8 millimeters. The number density of the charge carriers in the semiconducting material is 1.5 into 10 power 16 per meter cube. The constant voltage or current of 5.4 ampere is passed through the slice between the shaded faces. The Hall voltage then is developed between the terminals PQ is recorded. Okay, that is developed between the terminals PQ is recorded. So you can see, so you record the voltage which will develop across P and Q. You can see a 5.4 ampere current passing through, and you can see this magnetic field which is cutting through the face of the Hall probe. Okay, so let's now understand what happens. It says show that when B is equal to 4 into 10 power minus 6 Tesla, the magnitude of Hall voltage is 5 volts. Okay, so on the graph you can see the B is 4 into 10 power minus 6 Tesla. They've already given in the question. So अब उन्होंने हमें कहा हुआ है कि you have to calculate, you have to show that the Hall voltage is equal to 5 volts. But you all need to recall the formula of Hall voltage. Hall voltage is calculated by BIN. Thickness, in this case, the thickness is X. So this is thickness X. And E is the charge on electron. So B is the magnetic flux density, which is given in the question, 4 into 10 power minus 6. Current is given in the question, 5.4 amperes. Number density is given in the question. This is number density, 1.5 into 10 power 16. And thickness is given in the question, 1.8 into 10 power, because it's in millimeters, so 10 power minus 3 to convert it to meters. And the charge on an electron is 1.6 into 10 power minus 19. So you guys should actually, you have to remember the charge on electron. I expect most of you to know it. If you don't, then the value of these charges are given in the data section. So go to that formula sheet and the data section in front of your paper, you'll find the charge on electron there, if you don't remember. Anyways, so when you solve this, you'll get your answer as 5 volts. Okay. So this was the easier part. Now, actually, this is the tricky one.
It says on figure 7.3, sketch the variation of the Hall voltage between time t is equal to 0 to time 0.8 seconds. Okay, guys, now remember, we have already calculated the Hall voltage when value of B is 4. Okay? Now keep in mind, remember that Hall voltage is directly proportional to B. That's the key point. So we know that at point, you can see the time at point from this graph, you can see at 0.02 seconds, the flux density changes from 0 to 4. And at 4, when the flux density is 4, you know the Hall voltage is 5. Right? So what you'll do is, आप लोग यहाँ पर 5 पे जाके यानी 0.2 और 5 पे जाके एक प्लॉट लगा देंगे. तो 5 कहाँ होगा, आप देख लें कितने बॉक्सेस ऊपर होगा 5. आप वहां पर जाके निशान लगा लें. सो एक बॉक्स 0.2 का है ना, तो दिस इज 4.2. दिस इज नहीं, एक बॉक्स जो होगा वो इनफैक्ट 0.2 का नहीं होगा, एक बॉक्स 0.4 का है. सो दिस इज 4.4, दिस इज 4.8. तो यहाँ है 5. ठीक है, 5 और 0.2 पे 5 and 0.2 यहाँ पर ये आप डॉट लगा दें. ठीक है, 5 and 0.2. ठीक है. So since they are directly proportional, so you will get a straight line. यहाँ से लेके यहाँ तक you will get a straight line from 0 till this is 5. Okay, so you get a straight line. Then till point, if you look at this time, till 0.5 seconds, 0.05 seconds, there is no change in the value of B. Once again, since V and B are proportional, so therefore till 0.5 seconds, now till 0.5 seconds, mark 0.5. Yeah, this. Till 0.5 seconds, there will be no change in the value of the voltage. Okay, no change. No change in the value. So it stays at 5. Okay. Why? Because V and B are directly proportional. Then you see it from 0.5. No, that was not 0.5. Okay, I'm so sorry. This was okay. This isn't till 0.5. This is still. Okay, sorry. This is still 0.4. So I have to, drag it back to 0.4. Not till 0.5, till 0.4. Till 0.4. Okay. Till 0.4. Then it decreases to 2. The flux density decreases to 2. Now remember, if the flux density decreases to 2, the Hall voltage will also decrease by half, because as I said, it is directly proportional to B. So at 0.5 seconds, you can see the flux density is 2.
at 0.05 seconds. I don't mind. I mean, I'm calling it 0.5 at 0.05. Okay. So at 0.05 seconds, the flux density is 2. So that means at 0.05 seconds, the Hall voltage will be 2.5, half of 5. Okay. So यहाँ पे at 0.05, it will be 2. So 2 and 0.05 पे तुम लोग एक कोऑर्डिनेट यहाँ लगा दोगे 2 और 0.05 पे, और ये लाइन यहाँ से यहाँ जाए 2 and 0.05. ठीक है. And then Hall voltage is constant again till 0.08 seconds. So Hall voltage, the flux density is constant. So the Hall voltage is also constant. ठीक है. Hall voltage is also constant. Get it? ग्राफ समझ में आ गया सबको ये? ठीक है. थोड़ा सा ट्रिकी ग्राफ होता है ये, बट एक दफा आप इसको समझ लें तो ये इतना मुश्किल नहीं होता आपको, अगर ये टेक्निक समझ में आ जाए तो. गेट इट? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ पार्ट बी. A Hall probe in A is replaced with a small flat coil that has 3000 turns. The cross-sectional area of the coil is 3.4 into 10 power minus 4 meter square. The plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. The electromotive force E induced between the terminals of the coil is recorded as B varies, as shown in figure 7.2. Acha ji. Show that the magnitude of E at time 0.0110 seconds is 2 into 10 power minus 4. अच्छा जी. ठीक है बेटा. सबसे पहले तो आप लोगों को जरा ये याद दिला दूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस n times rate of change of flux. ठीक है. या सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. अच्छा देखो, इसके अंदर ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये ऑप्शनल है क्योंकि उसने कहा था मैग्नीट्यूड. सो अगर आप नहीं भी लगाएंगे नेगेटिव साइन, ठीक है, सो कोई मसला नहीं है. तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूँ बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के लिए मुझे नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा अब आगे चलते हैं. इज इक्वल टू, ये जो n है ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा. अब ये जो चेंज इन फ्लक्स है ना, ये किसके बराबर होता है? देखो, जो चेंज इन फ्लक्स होता है ना, ये बराबर होता है चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया. ठीक है. अच्छा है तो परपेंडिकुलर, तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो फिर कॉस की वैल्यू तो ये कॉस की वैल्यू तो 0 होगी. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये इसकी जगह मैं लिख दूंगा डेल्टा बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. अच्छा मैं इसको जरा रीराइट कर रहा हूँ. ये जो है ना, ए इसके साथ लिख दिया, इसको डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है इज द ग्रेडियंट, इट्स द ग्रेडियंट ऑफ टाइम ग्राफ. ठीक है. सिंपल आप उसका ग्रेडियंट पुट कर दें तो आप 0.01 सेकेंड्स पे जो ग्रेडियंट है 0.01 सेकेंड्स पे आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे, आप 0.01 सेकेंड्स पे जाके आप चेक करें जाके, ये 0.7 फिगर 7.2 में. ठीक है. यहाँ पे 0.01 सेकेंड्स पे जाके तुम रीड करोगे ये, तो ये आ रहा है फ्लक्स डेंसिटी आ रही है 2 फिगर 7.2 पे. 0.01 सेकेंड्स पे द फ्लक्स डेंसिटी इज 2. तो इसका ये एक पॉइंट हो गया, जाहिर है एक इसका ये ओरिजिन पॉइंट है.
ठीक है, 2 × 10⁻⁻⁶। तो देखो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। सो मैं सारी वैल्यूज अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 3000 क्वेश्चन में गिवन है। एरिया कितना है, 2.0 सॉरी 3.4 इंटू 10 पावर, ये रहा ना एरिया, 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶, समझो y2 माइनस y1 अपॉन x2 जाहिर है 0.01 माइनस x1, द ग्रेडियंट। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स, दैट्स योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, सो बस इस ग्राफ का जो 7.2 है ना, इसके अंदर 0.01 और 2, ये वजह 0.01 पे जाके जो पॉइंट आपने टच किया है, जाहिर है उस सेक्शन ऑफ द लाइन का आप ग्रेडियंट निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्न से और एरिया से। अच्छा, यहाँ कॉस की वैल्यू 0 क्यों है, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने कॉस 0 क्यों लिया। बेटा, ये जो आपको याद रखना है, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है नॉर्मल। ये जो नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होता है, तो इसका जो थीटा है ना वो 0 है। ठीक है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल से, ये इससे नहीं होता एंगल, प्लेन ऑफ द कॉइल से नहीं होता, द नॉर्मल टू द कॉइल जो होता है ना, नॉर्मल, उससे एंगल होता है। तो थीटा यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे थीटा आपका 0 होगा। सो डू नॉट गेट ट्रैप्ड विद दिस वर्ड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला में हम कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो वो जो नॉर्मल टू द कॉइल होता है और मैग्नेटिक फील्ड, उनके दरमियान का एंगल लेते हैं। तो नॉर्मल टू द कॉइल and magnetic field are parallel to each other. That's why I've taken theta as 0. ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको। चलो अब असल तो गेम ये वाला है। देखो अब उसने कहा हुआ है on figure 7.2 sketch the variation in E with T from time 0 to 0.08 seconds. Now this is the key thing. बेटा याद रहे कि ये मैं आपको बताऊं, जो इंड्यूस सीएमएफ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू, अच्छा माइनस साइन के साथ, टू द चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। ठीक है, और जो चेंज इन फ्लक्स और चेंज इन टाइम है वो प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे तुम्हारी फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है ना, वैसे वैसे तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज हो रहा होगा। नाउ अंडरस्टैंड, तुमने अभी पीछे ये जो है ये कैलकुलेट कर लिया है, ये तुमने किया था कहां पर, ये तुमने 0.1 सेकेंड पे किया था। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, देखो इसका जो ग्रेडियंट है ना ग्राफ का, इस वाले ग्राफ को देखो, देखो इसका जो ग्रेडियंट है ये 0.02 तक सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन है ना। तो जो ग्रेडियंट इसका इस सेक्शन का ग्रेडियंट है, तो वही ग्रेडियंट पूरे का भी होगा ना, यहां से लेके यहां तक का ग्रेडियंट भी वही होगा। ठीक है, आपको पता ही है। सो इस इन अदर वर्ड्स, जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा 0.01, उतना ही ईएमएफ 0.02 भी होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट सेम है ना। ठीक है, 0.02 तक क्योंकि इसका ग्रेडियंट सेम है, तो याद रखो इंड्यूस ईएमएफ भी सेम होगा। सिंपल, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो ना, अभी तुमने निकाले ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, भाई तुम नंबर ऑफ टर्न्स तो वही रहेंगे 3000, एरिया भी वही रहेगा, और क्योंकि ग्रेडियंट भी वही रहेगा 0.02 सेकेंड्स तक, तो ज़ाहिर इंड्यूस ईएमएफ भी यही रहेगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये पता है कि 0.0 टिल, यानी फ्रॉम 0 to
ये 0.02 सेकेंड्स, जो इंड्यूस सीएमएफ है उसकी वैल्यू अभी हम पीछे निकाल चुके हैं। इंड्यूस सीएमएफ की वैल्यू है, इंड्यूस सीएमएफ की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन बच्चों मत भूलो ये बात कि नेगेटिव साइन मैंने वहां तो इग्नोर किया था क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड देना था, लेकिन असल में तो नेगेटिव साइन है ना उसके साथ, क्योंकि फॉर्मूले में तो नेगेटिव साइन होता है। अब जो बच्चे ये नेगेटिव साइन भूल जाते हैं ना, उनका ग्राफ गलत आ जाता है, वो उसी मैग्नीट्यूड के चक्कर में रह जाते हैं। बेटा असल जो फॉर्मूला है ना वो तो इंड्यूस सीएमएफ का फॉर्मूला माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो पीछे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाला था तो आई इग्नोर्ड द माइनस साइन, माइनस साइन को मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मुझे माइनस साइन डालना पड़ेगा वरना ग्राफ आपका गलत बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0.02 सेकेंड्स तक आप एक सीधी लाइन बनाएंगे, इस पे -2, ठीक है जी। समझ में आया यहाँ तक सबको? या आपने एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहां तक इसका जो ग्रेडियंट है वो 0.02 तक कांस्टेंट है। तो क्योंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। बच्चे कहते हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाई है आपने? क्योंकि जब ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है तो फिर वैल्यू चेंज नहीं होती, उस टाइम तक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर इस पार्ट में देखो, टिल 0.4 सेकेंड्स द ग्रेडियंट इज 0। अच्छा यार मेरे मुंह से 0.4 निकलता, 0.04। तो 0.04 सेकेंड्स तक इंड्यूस ईएमएफ इज ऑल्सो जीरो, जीरो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपल, उसका ग्रेडियंट जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा। अच्छा, फिर नाउ इफ यू ऑब्जर्व के यहां से लेके यहां तक देखो, इसका टाइम 0.01 है और इसका भी चेंज हो रहा है, 4 से लेके 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है इस लाइन का ग्रेडियंट और इस लाइन का ग्रेडियंट बराबर ही हुआ ना। देखो कैसे बराबर हुआ, मैं तो फिर तो बताता हूँ। देखो यहां पर भी 0.01 सेकेंड्स के अंदर जो बी का चेंज आ रहा था वो 2 का आ रहा था, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। इसके अंदर भी तुम देखो, यहां से जो टाइम चेंज हो रहा है वो 0.01 सेकेंड हो रहा है, और जो बी के अंदर चेंज आ रहा है वो भी 4 से लेके 2, यानी 2 का चेंज आ रहा है ना, इसमें भी 2 का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ग्रेडियंट तो इसका बराबर है बिल्कुल, ठीक है। अब अगर इसका ग्रेडियंट बराबर है तो फिर इंड्यूस सीएमएफ में क्या फर्क होगा? बस एक फर्क होगा। देखो मैग्नीट्यूड तो इंड्यूस सीएमएफ का उतना ही होगा, उतना कितना जो अभी तुमने पीछे निकाला था, 2 × 10⁻⁻⁴। बस क्योंकि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन है, तो जो इंड्यूस सीएमएफ होगा ना वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेडियंट जो भी होता है ना उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जो अगले 0.01 सेकेंड्स तक ग्राफ बनेगा वो +2 पे, +2 पे बनेगा। तो ये 2 पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी कहाँ तक? अगले पॉइंट, ये 0.5 तक, ये यहाँ तक 0.5। अच्छा 0.05, यार मुंह से 0.5 ही निकले जा रहे हैं, 0.05 सॉरी, ठीक है 0.05। उसके बाद बच्चों क्या हुआ आपके इस ग्राफ के अंदर? उसके बाद ये फिर से इसका ग्रेडियंट जीरो हो गया, तो फिर अगर ग्रेडियंट जीरो हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ भी फिर से क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो, ठीक है। सो ये जरा एक मुश्किल सवाल था,
ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें 2-3 ग्राफ्स थे। ये ग्राफ बनाने आने की प्रैक्टिस करो बच्चों, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। सो मेक श्योर कि ये इस तरह के ग्राफ्स की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, a hall probe is placed in a magnetic field, the hall voltage is 0, the hall probe is rotated। अब क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि आपने हॉल प्रोब को रोटेट किया to a new position in the magnetic field, the hall voltage is now maximum, ठीक है। अब उसने कहा भाई एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बच्चों, जब हॉल प्रोब पैरेलल था ना टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी रीडिंग 0 होती है, ठीक है। अब उसकी रीडिंग पैरेलल में क्यों 0 होती है? क्योंकि पैरेलल में हम ये कहते हैं कि जब आपने हॉल प्रोब को पैरेलल रखा हुआ होता है, तो जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना उसके थ्रू, अब देखें वो इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा मैं पहले आपको ये लिख दूं फिर मैं बताता हूँ। व्हेन प्लेन ऑफ हॉल प्रोब इज पैरेलल, इससे पैरेलल टू मैग्नेटिक, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड का हो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हो, फ्लक्स डेंसिटी रीडिंग इज 0, इट्स रीडिंग इज 0, रीडिंग इज 0। क्योंकि जब पैरेलल होता है ना तो कोई फोर्स नहीं लग रही होती इलेक्ट्रॉन्स पे, और जब इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स नहीं लग रही होती तो फिर इलेक्ट्रॉन्स किसी, आई होप जरा हॉल प्रोब को जाके रिकॉल करें, हॉल प्रोब को पढ़ें। हमने पढ़ा था कि अगर पैरेलल चार्जेस मूव करें ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, अगर करंट फ्लो करे या चार्जेस मूव करें, तो फिर दे डू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। और जब तक उनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तो जाहिर है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि फोर्स लगती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जो है वो चले जाते हैं, और उस डायरेक्शन में जाने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो आपको थोड़ा हॉल प्रोब रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैक्सिमम कब होती है? व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर। अब जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, परपेंडिकुलर होने के बाद मैक्सिमम फोर्स लगती है, तो रीडिंग भी क्या हो जाती है? मैक्सिमम, रीडिंग इज मैक्सिमम। तो हमें समझो हॉल प्रोब रखना ही बच्चों ऐसे होता है कि उसका जो प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर। अच्छा, प्लेन कौन सा? देखो ये भी जहन में रहे, प्लेन भी कौन सा, इसमें एक प्लेन होता है जिसके थ्रू करंट जाता है, ठीक है। ये उस प्लेन की बात नहीं हो रही, वो प्लेन जिससे करंट जाता है वो नहीं, वो जो इसका समझो मैक्सिमम एरिया वाला जो इसका प्लेन होता है ना, इसका सबसे बड़ा एरिया होता है। जैसे ना पीछे डायग्राम में ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ो ना। अब उसने कहा भाई द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द हॉल वोल्टेज एज मेजर्ड बाय अ हॉल प्रोब इज दिस। अच्छा आदमी है, इसने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया। जरूरी नहीं है कि हर उसमें आपको फॉर्मूला बताए। द टेबल 6.1 shows the value of n for two materials। उसने दो मटेरियल्स की वैल्यू दे दिया। व्हाट इज अच्छा मीनिंग, स्टेट द मीनिंग ऑफ एन। एन का नंबर डेंसिटी को भी कहते हैं द नंबर ऑफ चार्जेस। इस केस में जो चार्जेस होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ चार्ज। वैसे तो चार्जेस लिखना, लेकिन हमारे इधर हॉल प्रोब में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्जेस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई अ हॉल प्रोब इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन रादर देन कॉपर। देखो सिलिकॉन का जो एन होता है ना ऑफ सिलिकॉन इज स्मॉलर, ठीक है। तो देयरफॉर
a larger hall voltage, ठीक है, is produced in the same field. एक ही फील्ड में अगर आप दोनों को, भाई देखो असल में हॉल वोल्टेज और एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जितना, अच्छा बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला कि सिलिकॉन जो है वो उसका एन की वैल्यू छोटी होती है? बेटा सिलिकॉन इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। सिलिकॉन के बारे में पता है, इट्स अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये एक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कॉपर के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, कंडक्टिविटी उसकी कम है इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होते हैं। तो क्योंकि सिलिकॉन की एन की वैल्यू छोटी है तो ज़ाहिर है उसका हॉल वोल्टेज ऑटोमेटिकली बड़ा आएगा। अगर आप उसको सेम फील्ड में भी रखेंगे, यानी बी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी, लेकिन उसके बावजूद हॉल वोल्टेज जो है वो लार्जर आएगा। ठीक है, अच्छा ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखो ये एडवांटेज कैसे है बहुत बड़ा, क्योंकि इससे हमें फायदा ही होता है कि आपका जो बहुत वीक फील्ड्स होती है ना उसके अंदर भी वोल्टेज डिटेक्ट कर लेता है। वरना अगर आपकी एन की वैल्यू भी आपकी छोटी ना हो ना, अगर एन की वैल्यू बड़ी हो तो फिर क्या होता है, जो वीक फील्ड्स होती हैं उसके अंदर वोल्टेज डेवलप ही नहीं होता, यानी इतना छोटा वोल्टेज आता है कि फिर वो आप रीड ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर फील्ड भी वीक है, उसकी वजह से भी वोल्टेज कम होता है, और एन की वैल्यू भी बड़ी है उसकी वजह से वोल्टेज कम होता है। तो वो वोल्टेज इतना छोटा क्रिएट होता है कि आप वो रीड ही नहीं कर पाते। इससे कम से कम ये होता है कि एन की वैल्यू जब छोटी होती है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एन की वैल्यू छोटी होती है तो वोल्टेज बड़ा हो जाता है। तो हमें ये मार्जिन मिल जाता है कि वीकर फील्ड्स के अंदर भी अगर वोल्टेज मेजर करना हो तो वो फिर भी मेजरेबल होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ Hall probe gives a maximum reading of 24 millivolts when placed in a uniform field of flux density 32 millitesla. The same Hall probe is then placed in a magnetic field of fixed direction and varying density. The Hall probe is in a fixed position, so the angle between the Hall probe and the magnetic field is same as when the Hall voltage was 24 millivolt. ठीक है जी। The variation of the reading of VH on the Hall probe with time from t is equal to 0 till 8.6 second is shown in figure 6.1. ठीक है, अब गाइस देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा इसका आगे। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, आप दफा ये सी पार्ट फिर से खुद से एक दफा पढ़ लें। उसने कहा हुआ है कि ये मैक्सिमम रीडिंग देता है 24 मिली टेस्ला की जब आप एक इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं 32 मिली टेस्ला की। ठीक है, अब वो आप कह रहा है कि अब आप उसे रख देते हैं तो हॉल प्रोब इज देन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन बट वेरिंग फ्लक्स डेंसिटी। डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, फ्लक्स डेंसिटी वेरी होती है। ठीक है, उसने कहा द हॉल प्रोब इज इन अ फिक्स्ड पोजीशन सो दैट द एंगल बिटवीन द हॉल प्रोब एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। तो एंगल में कोई फर्क नहीं आता, एंगल वही रहता है जैसा पहले आपने उसका रखा था, तो एंगल में आपको चेंज नहीं लग रहा था। एंगल वाला फैक्टर यहाँ पर जो है वो कोई चेंज कॉज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं। उसने आपसे कहा हुआ है कि उसकी, अच्छा द हॉल प्रोब इज इन अ फिक्स्ड पोजीशन सो दैट द एंगल between the Hall probe and the magnetic field is same as when the Hall voltage was 24. ठीक, अब आपको उसने कहा है द वेरिएशन विद VH विद टाइम, ये आपको वेरिएशन हॉल वोल्टेज का विद टाइम गिवन है। उसके 780 टर्न्स हैं, डायमीटर उसका 3.6 है, is placed in the varying field. The plane of the coil is perpendicular to the field lines. ठीक है जी, क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in the coil from time 0 to 8.6 seconds. 0 to 8.6 seconds.
ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा क्या निकालना है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड। बच्चे 4 मार्क का क्वेश्चन है। ये अक्सर लोग इसके जो है ना वो पूरे 4 मार्क नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसको इसको ऑब्टेन कैसे करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ चीजें इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान में रहे कि फ्लक्स जो होती है वो बी ए के बराबर होता है, और चेंज इन फ्लक्स जो होता है ना, याद रखो, वो होता है चेंज इन बी इंटू ए। और जो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होता है, ठीक है, जो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होता है, लिंकेज, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स चेंज इन फ्लक्स इनटू ए। अच्छा यहाँ पर मैं कॉस जीरो पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो फिर आपको थीटा लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब आप देखें, सबसे पहले तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों, मैक्सिमम ईएमएफ वहां इंड्यूस होगा जहां मैक्सिमम चेंज आ रहा है, मैक्सिमम चेंज आ रहा है इसके अंदर, हॉल वोल्टेज के अंदर या फ्लक्स के अंदर। देखो हॉल वोल्टेज और फ्लक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हॉल वोल्टेज और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका इन अदर वर्ड मतलब ये है कि जिस पार्ट ऑफ द ग्राफ में ग्रेडियंट मैक्सिमम है, ठीक है, ग्रेडियंट मैक्सिमम है, वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है। अब आप देखें, इसका ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट समझते हो ना, स्लोप। सर अंधे को भी नजर आ रहा है कि इसका सबसे ज्यादा ग्रेडियंट है। इसका तो खैर ग्रेडियंट ही जीरो है, इसका ग्रेडियंट जीरो है, और इसका ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है कि इस लाइन का ग्रेडियंट कम है। तो सबसे पहली चीज जो तुम लोगों को समझनी है ना, वो ये कि इसका इसका जरा टाइम जाके यहाँ पे रीड कर लो, इसका ये टाइम कितना है, ये टाइम यहाँ जाके रीड कर लो। ये टाइम इसका है 7.2 सेकेंड्स। ठीक है, 7.2, और ये टाइम भी रीड कर लो जाके, ये टाइम है 8.6। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब आप देखें, पहली बात, मैं जरा पॉइंट वाइज देख रहा हूँ। मैक्सिमम ईएमएफ is where the gradient of VH time graph is maximum. That is from 7.2 seconds to 8.6 seconds. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब बच्चों, इसने एक चीज आपको और बताई दी है क्वेश्चन में। इससे यहाँ पर कहा हुआ है कि, उसने कहा है हॉल प्रोब इज इन द फिक्स पोजीशन सो दैट द एंगल बिटवीन द हॉल प्रोब एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज व्हेन द हॉल प्रोब। अच्छा हाँ भाई, ये वाली बात उसने कहा है, मैक्सिमम रीडिंग होती है 2.4 की जब फ्लक्स डेंसिटी होती है 32 की। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जब 32 की होती है तो उस वक्त हमारे पास रीडिंग आती है 24। अच्छा अब इधर देखिए, अब इसके ग्राफ पे जाके जरा वैल्यू पढ़ें। 7.2 सेकेंड्स पे उसका हॉल वोल्टेज कितना है, इसको जरा आप रीड करें। यह आ जाएगा
36 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, ग्राफ से रीड कर लीजिए, ये 36 आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल यूनिटरी मेथड अब अप्लाई करेंगे। देखो यूनिटरी मेथड आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो एट 7.2 सेकेंड्स ये जो फ्लक्स इज कैलकुलेटेड। अब देखो मैं एट जो है ना वो 7.2 सेकेंड्स में फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे? ऐसे कर रहा हूं, यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं। देखो यूनिटरी मेथड क्या है, उसने कहा है 24 मिली वोल्ट्स पे फ्लक्स डेंसिटी होती है 32। सो क्योंकि 24 मिली वोल्ट्स पे फ्लक्स डेंसिटी होती है 32 मिली टेस्ला, तो एट 36 मिली वोल्ट, ये 36 मिली वोल्ट कहां से आया? ये हमने अभी निकाला 7.2 सेकेंड्स पे 36। ठीक है, सो 36 मिली वोल्ट पे उसकी वैल्यू क्या हो? तो आप यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यूनिटरी मेथड से, ये आ जाएगा, देखो ना यूं हो जाएगा ना, ये 32 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 36। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 48 मिली टेस्ला। ठीक है, 48 मिली टेस्ला। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, एट 8.6 सेकेंड्स बी इज इक्वल टू 0। सर ये तो 0 ही होगा। कैसे पता मुझे ये 0 होगा? क्योंकि हॉल वोल्टेज 0 है, यहां पर हॉल वोल्टेज 0 है ना 8.6 पे। ठीक है, बिकॉज वी एच इज 0। सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये आपके पास हो गया अब इसका चक्कर। अब आप फाइनली फॉर्मूला लगा दें। चलो ये मैं जरा यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूं। तो अब आप अपना फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लें। सो बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी आपको बताया, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस साइन ऑप्शनल होता है। वंस अगेन इसने मैग्नीट्यूड कहा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं माइनस साइन हटा दूंगा। अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं कहता तो मैं माइनस साइन लगाता। ठीक है, एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। अब ये फॉर्मूला मैं पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर सका, तो मैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं क्वेश्चन में गिवन थे 780। नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में गिवन है 780। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? पीछे आई थिंक कहीं ना कहीं गिवन था क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, डायमीटर गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है। तो मैं निकाल लूंगा, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा पाए डायमीटर। डायमीटर कितना है? 3.6 सेंटीमीटर है, तो 3.6 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, पाए ये होता है डी स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर दिया ना, एक ही बात है। ठीक है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका हो गया। अच्छा जी, फ्लक्स का अभी आपने कैलकुलेट कर लिया। फ्लक्स में इधर लिख देता हूं, तो 48 मिली टेस्ला है इंटू 10 पावर -3 -0 अपॉन जो टाइम का चेंज आया है वो 8.6 -7.2। ठीक है, ये आपका हो गया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी।
बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.027, राउंड ऑफ करके मैं इसको लिख दूंगा 0.03। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ट्रिकी क्वेश्चन था ये, इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। बच्चों को ये आमतौर पर क्वेश्चन इतना आसान नहीं लगता, उनको सॉल्व करने में ये मुश्किल लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस वन देखो, a heavy aluminum disc has a radius of 0.36 meters. The disc rotates with the wheels of the vehicle and form part of the electromagnetic braking system on the vehicle. In order to activate the braking system, a uniform magnetic field of flux density 0.17 Tesla is switched on. This magnetic field is perpendicular to the plane of the rotation of the disc as shown. सर आपको नजर आ रहा है एक एल्यूमिनियम डिस्क है, इसका रेडियस गिवन है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू कट कर रही है, ये एक एक्सेल है जिसके अबाउट ये घूम रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है। एक दफा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें ताकि फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊं। चलिए, अब डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ magnetic flux density and the area which is perpendicular to the plane. अच्छा जी, कैलकुलेट एक सेकेंड it's a problem magnetic flux density and the area with its plane perpendicular, बोलते हैं area with its plane perpendicular to magnetic field. ठीक है, यानी प्लेन ऑफ द जो एरिया होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाजमी लिखना है आपने, वरना आपको एक मार्क कम मिलेगा। चलो, अब उसने कहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द डिस्क, गिव अ यूनिट विद योर आंसर। अब देखो यार, इसके अंदर आसान है, रेडियस ऑफ द डिस्क गिवन है आपको, फ्लक्स डेंसिटी आपको गिवन है, सिंपल आप फॉर्मूला लगाएं, बी ए कॉस थीटा, बी की वैल्यू है 0.17 टेस्ला, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर दूंगा कॉस 0, 0.17 मल्टीप्लाइड बाय पाई और रेडियस है 0.36 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.069, इसको मैं राउंड ऑफ करके 0.07 और यूनिट इसका होगा वेबर। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है वेबर, फ्लक्स का, फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, फ्लक्स का होता है वेबर। अब उसने कहा भाई डिस्क इज रोटेटिंग एट 25 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है जी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सल एंड द रिम। अच्छा चलो, इंड्यूस ईएमएफ उसने फिर से कहा मैग्नीट्यूड है, तो साइन को इग्नोर कर दो, अपॉन टी या डेल्टा टी कुछ भी कह लीजिए। ठीक है,
तो इसको हम कह सकते हैं फ्लक्स इनटू 1/t, और 1/t आपको मालूम है किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के, तो मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो फ्लक्स का, अभी तुमने फ्लक्स पीछे कैलकुलेट कर लिया ना, फ्लक्स वो है 0.069। अच्छा, चेंज है ना, तो -0, इनिशियली तो 0 था, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन नहीं की थी उस वक्त फ्लक्स 0 था, और जब आपने स्विच ऑन कर दिया है तो उस वक्त फ्लक्स है 0.069, जो पिछले पार्ट में आपने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी 25, तो आपका आंसर आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का 1.7 वोल्ट्स। ठीक है। अच्छा गाइस, अब इसका जो अगला पार्ट है ना वो भी थोड़ा ट्रिकी है, मैंने देखा है लोग इसका आंसर जो है ना वो नहीं कर पाते ठीक से। अच्छा, अब पहले इसको समझ लो। The axle and the rim are connected into an external circuit that enables the energy of the rotation of the disc to be stored for future use. ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि जी ये जो एक्सेल है ना और ये रिम है, इसको आपने किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा हुआ है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आप स्टोर कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज शोन। जी बिल्कुल ऐसे ही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी जो है वो हमें नजर आ रही है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी ये आपको दिखाई दे रही है, इट्स बेसिकली दिस वे। ठीक है, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नाउ। अच्छा, मैं एक सेकेंड इसकी एक तस्वीर लेके ना आई जस्ट यूज दिस पिक्चर, ताकि मुझे बार बार जो है वो इधर ना आना पड़े। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ ठीक है, मैं इधर इसको डाल देता हूँ जस्ट टू सेव माई टाइम। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस इज यूज लेंजेस लॉ। नाउ वो ये कह रहा है यूज लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू डिटरमिन वेदर द करंट इज in the disc is from the rim to the axle or axle to the rim. Explain your reasoning. Okay guys, now अगर मुझे लेंजेस लॉ यूज नहीं करना होता ना तो मैं सिंपली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके आपको समझा देता, बट क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू यूज लेंजेस लॉ, सो देन आई हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ लेंजेस लॉ। अब लेंजेस लॉ बेसिकली कहता क्या है, अगर आपको याद हो, लेंजेस लॉ ये कहता है कि जब भी किसी चीज में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो अपोज करता है, इट अपोजेस द सोर्स, इट अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखें इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब एक रिम घूम रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला सवाल ये है क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, द आंसर इज यस। देखो पहला इसका एक मार्क ये बताने का है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो, द रोटेशन ऑफ डिस्क induces EMF and hence current। ज़ाहिर है EMF इंड्यूस होगा तो and hence current। अच्छा सर, अब क्योंकि ये जो आपने रोटेट करते हैं ना, सो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। आपको याद है कि अगर देखो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूसेस ईएमएफ एंड हेंस करंट। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ परपेंडिकुलर क्यों, लोग कहते हैं सर आपको कैसे पता, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक सेकंड में आप लोगों को ये बात लिख दूं फिर बताता हूँ। अब जब भी ये करंट इंड्यूस होता है ना तो लेंजेस लॉ ये कहता है कि ये अपोज करता है किस चीज को, जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, जिस तरह आप इसको घुमा रहे हैं रिम को, वो इसके घूमने को अपोज करेगा, इट विल ऑलवेज अपोज द सोर्स। ठीक है, तो ये जो
इंड्यूस करंट है ना, ये क्या करता है, एंड प्रोड्यूस अ फोर्स, ये एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा विच अपोजेस द मोशन ऑफ डिस्क। ठीक है, डिस्क कह लो, रिम कह लो, ये जो डिस्क है या रिम है, ये उसके मोशन को अपोज करेगा। गाइस पहले, अच्छा इसमें दो बातें हैं। पहले तो सवाल ये है ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा, क्योंकि चेंज आएगा फ्लक्स में। जब ये घूमेगी, जब ये रिम घूमेगा, डिस्क घूमेगी, तो एक चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। ठीक है, जब चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो ज़ाहिर है ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज आ रहा है। अच्छा, तो करंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इसलिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि देखो आपको याद होगा कि जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती है ना, तो तीसरी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होती है। दो क्या, कौन सी दो चीजें, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और जो मोशन है, देखो मोशन का मतलब आप समझें ये इस तरीके से ना, ऊपर देखो तो ये एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तुम्हारी इस डायरेक्शन में है, ये इधर है ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो तुम ऊपर देखो, तुम इसका जो मोशन है वो तुम रिम का वो मोशन बेसिकली इस डायरेक्शन में यूं करके, तो ये यूं घूम रही है ना, यूं करके ये आपके इस यूं करके घूम रही है, यूं करके घूम रही है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप बिल्कुल इसका टॉप पे अप्लाई करें, इसको टॉप को देखें, तो इसका टॉप यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, जाहिर है तो परपेंडिकुलर हुए ना। तो बच्चों जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, तो लाजमी याद रखो जो तीसरा फैक्टर होगा वो तो लाजमी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। सो यूं समझ लो कि ये जो है ये इनटू द पेपर है, इसका मोशन, ये मोशन इनटू द पेपर है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है टुवर्ड्स राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये ऐसे है। तो जब मोशन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो जो करंट इंड्यूस होगा वो ऑटोमेटिकली दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा अब वही तो निकालना है कि वो करंट किस तरफ होगा। उसने कहा भाई या एक्सल टू रिम होगा या रिम टू एक्सल होगा। तो मैं अब आपको समझाता हूँ, लेकिन इसमें गाइज अब देखो मुझे कैसे निकालना है। बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि इस पे लगा देते हैं राइट हैंड रूल। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर इंड्यूस करंट निकालना है ना, नहीं, लेकिन मुझे लेंजेस लॉ अप्लाई करने के बाद मैं राइट हैंड रूल नहीं लगाऊंगा, मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। देखो लेफ्ट हैंड रूल क्यों लगाऊंगा, यूजिंग फ्लेमिंग्स, बेटा मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे क्लास में चले, मैं आ रहा हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, we determine the direction of current which is, अच्छा अब देखते हैं which is क्या, which is कहां से कहां। अब देखो बच्चों, अब इस पे लेफ्ट हैंड कैसे लगाना है। आप इस रिम को यूं मूव करवा रहे हैं ना, यूं समझो, इस तरीके से आप समझे। आप रिम को जो है वो इस ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप रिम को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, लेकिन हमें इस वाली डायरेक्शन को नहीं लेना, हमें उस डायरेक्शन को लेना है जो फोर्स इंड्यूस करंट लगा रहा है। देखो अभी हमने क्या कहा कि इंड्यूस करंट जो होगा वो उसको अपोज करेगा ना, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन। तो आपका जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना, वो फोर्स लगाएगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम्हें ये लेना है। ठीक है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारी फोर्स बाय इंड्यूस करंट है। ठीक है, ये लेनी है तुम्हें फोर्स बाय इंड्यूस करंट, तो तुम्हें इस डायरेक्शन को लेना है। अब लगाओ अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे जब,
सो यहाँ पर ये इसको पॉइंट करना चाहिए फर्स्ट फिंगर, तुम्हारी फर्स्ट फिंगर जो होगी वो इधर होगी, ये फर्स्ट फिंगर इधर होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इधर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड फिंगर आपकी जो होगी ना वो डाउनवर्ड आ जाएगी, ये आपकी सेकंड फिंगर इधर हो जाएगी, यहां हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो करंट फ्लो कर रहा है वो रिम टू एक्सेल फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम रिम टू एक्सेल। ठीक है, समझ में आया ये सबको? फिर से एक दफा समझा रहा हूँ, इसके बाद देख लो। देखो मैं इसको तुम लोगों को बार बार इसको एक दफा और फिर समझा देता हूँ। ये तुम्हारी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तुम्हारी जो फर्स्ट फिंगर है वो इस तरफ होनी चाहिए, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर। ठीक है, वो इस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जा इधर रहा है, ये जा इधर रहा है, लेकिन द फोर्स एक्सर्टेड विल अपोज द मोशन। तो जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, द फोर्स। ठीक है, ये क्या है? द फोर्स, दिस इज द फोर्स which opposes the motion। इसमें तुम अरेंज कर दो अपना सेकंड फिंगर, अब इस पे लगा दो सेकंड फिंगर। जब आप, सॉरी सेकंड फिंगर कह रहा हूं, सॉरी गाइस, थंब, इस पे लगा दे थंब। ठीक है, तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो यू विल सी कि योर सेकंड फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स, अच्छा एक सेकंड में इसकी तस्वीर लेके इस पे पोस्ट भी कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आए ये कैसे। एक मिनट देना मुझे। मैं आप लोगों को जरा साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। एक मिनट, अच्छा चलो इतनी देर ये काम होता है, मैं आप लोगों को, या, अच्छा देखो, या, ओके, ऐसे। ठीक है, ऐसे। सो द दैट्स हाउ दिस इज माय सेकंड फिंगर। ठीक है, गिविंग डायरेक्शन ऑफ, समझ में आ गया तुम लोगों को? ये सेकंड फिंगर जो होती है ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दे देती है। इज दिस क्लियर? ओके, चलो अभी आज हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस। आई विल अपलोड अनदर फाइल विद फ्यू मोर क्वेश्चंस सॉल्व। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लें।